welcome to our channel. This is our first video together and this video is for everybody who's going to Bali anytime soon. तो बाली का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. बाली ऐसी जगह है जहाँ वो फुल पैकेज है, मतलब उधर बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है. अगर आपको लीजर टाइम स्पेंड करना है तो लीजर टाइम भी हो जाएगा आपका, स्पिरिचुअल टाइम भी हो जाएगा. हाँ, आपको स्पिरिचुअल टाइम भी हो जाएगा. लोग इधर बॉडी वेलनेस के लिए भी बहुत आते हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टेल यू द बेसिक थिंग्स जो बहुत ज़रूरी है, जैसे वीज़ा आ गया, फ्लाइट्स आ गया, हेल्थ डिक्लेरेशन आ गया, टूरिज्म टैक्स आ गया, वो सब बताएंगे हम आपको. सो लेट्स स्टार्ट विथ वीज़ा. So visas, Bali has e-visa for Indians as well as visa on arrival, but we would suggest you get an e-visa while coming here, so you save 30-40 minutes at the airport and don't have to stand in the line for your visa. तो भी अपन को काफी खड़ा तो रहना पड़ा. That was immigration. हाँ, but इमिग्रेशन के लिए भी तो भी 1 hour जितना तो हो 30 ही minutes, गया. 40 minutes minimum, and 1 hour plus during peak season. The charge for visa on arrival or e-visa is $35. It's the same however you pay it. So it is better you get it online only and don't stand in the line. For getting the e-visa, you have to fill a form, the link for which we'll mention here and also in the bio, so you can check it out. So in that form, you have to fill your passport details, where you are staying, and the date you are arriving. That's it. It's very simple. It takes only 2 minutes. And along with that, there are a couple of forms like the health declaration form, the customs declaration forms, which are very simple. You can fill them online. I'll mention the links for them too. And that's it. You won't have to wait in the airport lines to fill the forms there. So another thing is Bali tourism tax. So we paid it upfront while coming, while getting our e-visa. So it's around $10 per person. We paid it and we came here. बट हमको किसी ने पूछा ही नहीं कि तुम्हारा वो क्या है, बताओ. तुम कुछ. No one asked for the हाँ. Bali tourism I tax guess receipt. ज्यादा टाइम पूछेंगे. I don't think so. But you guys don't fill it until and unless they ask you to fill it. So Because yes, हमें लग रहा है हमारा तो वेस्ट ही गया है. कितने भरे थे अपन? $10 per person. $10 per person. Fill it only when someone asks you at the airport. That way you'll save around $10. So coming to the flights, there are no direct flights to Bali from India. So you'll have to take a layover in either Vietnam, Singapore or Malaysia. So depending upon your airline, either it will be Vietjet, Singapore Airlines or Malaysian Airlines. The best airline of these three, obviously everyone knows, is Singapore Airlines with a layover in Singapore. The second best is Malaysian with the layover in Kuala Lumpur, and the third one is Vietjet. So if your budget is tight and आपको चाहिए कि नहीं हमको टाइम पे पहुंच जाना है बस और कुछ नहीं चाहिए, तो take Vietjet. And if you have unlimited budget or budget is not an issue for you, then Singapore Airlines is the best obviously. We flew Malaysian Airlines and क्योंकि हम बीच के हैं. so मलेशियन. लेकिन उधर हमारी फ्लाइट जो इंडिया से थी टू मलेशिया वो 3 hours लेट डिलेड. तो बहुत इशू हो गया था बिकॉज हम जब लैंड किया तो हमारा फाइनल कॉल चल रहा था. we did not get any time in Kuala Lumpur to explore the airport, but probably we'll do it हाँ, while leaving क्योंकि if जितना भी it's हमने not देखा late. वो बहुत ही अच्छा था, हाँ. बहुत ही अच्छा था. So Kuala Lumpur airport also has all the brands, all the luxury brands. So if you want to buy something, You can do it. So another interesting part about Bali and coming to Bali is that इसके आप यहाँ के बहुत अमीर हो जाओगे. so the currency over here is called Indonesian rupiah or IDR. So IDR is very weak as a currency. So around 1 rupee is equals to 190 IDR. So अगर आप इधर 1 लाख IDR का नोट आता है which is worth around 500-520 rupees ही, तो आप इधर आके लाखों करोड़ों में डील करोगे. So you will feel very rich after coming here. थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगा. हाँ, the currency here is very हाँ, weird. तो So मतलब इधर लिखा होगा 1 लाख, तो it will be around 500 rupees only, but you will get confused. The notes here are very big, so you will have confusion while calculating amounts. They have 1 lakh का note, 50,000 का note, 20,000 का note, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 नोट. इंडिया में जो नोट बंद हो गए हैं वो सारे इधर सारे नोट है. चलते 1000 का नोट है, 2000 का नोट है. So that way you'll have to be careful while dealing with currency here. And we would suggest you get USD from India and not IDR. So you get dollars Yes. from India. So होगा क्या कि IDR का आपको इंडिया में खराब रेट मिलेगा एंड रूपी का, इंडियन रूपी का इंडोनेशिया में खराब रेट मिलेगा. सो द बेस्ट थिंग इज यू गेट डॉलर्स फ्रॉम इंडिया एंड एक्सचेंज डॉलर्स हियर. सो एयरपोर्ट में मत एक्सचेंज कराना अनलेस इट्स नेसेसरी फॉर द कैब और एनीथिंग. तो आप एयरपोर्ट पे एकदम मिनिमल अमाउंट एक्सचेंज करा लीजिए
the rate there is a little lower compared to the city, and you come to the city में आपको हर जगह मिल जाएगा एक्सचेंज बट वाला. उसमें बहुत सारी जगह है सिटी में जहाँ आपको मिलेगा, बट बी केयरफुल. वो लोग ना ऐसा लिखते हैं नो कमीशन नो ये नो, बट समटाइम्स इट्स अ स्कैम. ओनली गो टू प्लेसेस which have PT in their name. So PT is like इंडिया में जैसे लिमिटेड होता है वैसे इधर PT लिखता है, तो हाँ. go to places only which with has PT in them. PT, तो मतलब वो ऑथोराइज्ड है कि वो आपको स्कैम नहीं करेगा. बाकी देर आर हर एक गली में 4 से 5 शॉप्स होगी मनी एक्सचेंज हाँ. की, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट आप देख के जाओ. ऐसा- इंडिया में पान के गल्ले होते हैं वैसे इधर मनी एक्सचेंज होता है. हाँ. So how they scam you is अब आपके सामने जब वो गिनेंगे you'll have all the notes, but when you come to the hotel and check them, आधी नोट गायब ही होगी. So it's good that you count the notes multiple There- times हाँ, उधर ही आप and count अच्छी जगह करो. से आप एक्सचेंज करो. एंड मेक श्योर कि आप उधर ही काउंट करो, एंड उधर उनको बोलो अगर आपको कम ज्यादा कुछ भी है तो उधर से ही आप करके आ जाओ होटल. Coming to cards, you can get a card too, but it is advised कि आप कैश ही कैरी करें. Around 80% तो मिनिमम कैश कैरी करें. हाँ, इधर कार्ड बहुत कम चलते हैं, मोस्टली हाँ. कैश में ही और सब चलता है. either you use a card, you pay even if you are using a zero forex card. People here will ask you around 2% 3% extra to pay through card, क्योंकि इधर सब लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं कार्ड्स. यू कैन विड्रॉ योर मनी फ्रॉम ATM ऑल्सो, बट इधर ATMs का भी बहुत स्कैम चलता है. तो बहुत बार ऐसा होगा कोई शेडी ATM होगा, आप चले जाओगे, पैसे डेबिट हो जाएंगे अकाउंट से बट कैश नहीं आएगा. सो यू विल हैव टू डील विद दैट टू. सो इवन इफ यू यूज ATMs, यूज प्रॉपर ATMs of proper banks like BNI and all these banks. Don't go to shady ATMs. So coming to the SIM cards, obviously you'll have to get an Indonesian SIM card or get a international roaming plan from India itself. Jio and Airtel provide that. That will be a little बट वो expensive. बहुत कॉस्टली होता है. 3000 आप इंडिया से rupees मत रहेगा करके आना, आपको. बाय सिम कार्ड, बाय हियर. इधर का लोकल सिम कार्ड आप बाय करो. Yeah, so that you will get around 500 to 600 rupees, but don't buy it from the airport. They'll charge you 1300 1400 rupees. मतलब 2.5 lakhs in Indonesian rupiah. That is around 1300 1400 rupees. आप इधर आके buy करो सिटी में आके. You will have to just give your passport to them, and the SIM will be activated in a couple of minutes. That's it. So you can take only internet plans. They will be cheaper. You'll get them around 400 to 600 rupees. So बहुत डेटा आता है. We एंड got बाइंग अ सिम कार्ड इज आल्सो नॉट एन इशू हियर. इधर हर गली में 2 से 3 दुकानें होती ही So- है, कहीं भी आप जाओ. हाँ, Bali is dependent entirely on tourism, so you'll get currency exchange, SIM card everywhere you go. मोटर बाइक्स, आपको कोई भी चीज आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल मिल जाएगी. Yeah, coming to motorbikes, petrol here is very cheap. So the price of थोड़ा 1 liter, उठा के ले जाता है. the price of 1 liter petrol here is around 10,000 Indonesian rupiah, which is around 50 rupees. 53 rupees a liter, which is almost half of what it costs in India. सो द बेस्ट टाइम टू विजिट बाली इज अप्रैल मिड टू अक्टूबर मिड. बाली में 2 सीजन ही होती है, ड्राई सीजन एंड एक वेट सीजन. सो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वेट सीजन ही होती है. अप्रैल से अक्टूबर तक थोड़ी ड्राई रहती है. ऐसा नहीं है कि इसमें भी बारिश नहीं होती, बारिश होती है But limited होती हाँ. है. And most of the times during the dry season, it rains during the night. So last night it was April 30. It rained a lot for around 2 hours in the night. So ऐसा नहीं है कि dry हाँ. season में पूरा सूखा मिलेगा. सो ऑलवेज कैरी हाँ, छाता और रेनकोट, जो भी आपको कन्वीनियंट है. लेकिन आप कहीं भी बाहर निकल रहे हो तो एक छाता कैरी करके ही निकलो, टू बी ऑन अ सेफर साइड. So the best areas to visit in Bali. So Bali has different areas. इधर ऐसा है कि हर 5 किलोमीटर में एरिया चेंज हो जाएगा. So if you want to see the real Bali, like the proper culture of here, you should go to Ubud and nearby places. So Ubud is in the center of the Bali island. So it is literally a rainforest. तो वहाँ पे आपको पुराने जमाने का या जो एक्चुअल बाली होता है जिसमें दे हैव हाउस टेम्पल्स एंड ऑल दैट, यू गेट टू सी ओनली इन उबुद. And Ubud is a very tourist area, so you get good hotels, good cafes there too. Where if you want to splash a lot of money, if budget is not a problem for you and you want to stay in a very luxurious resort, then Nusa Dua is a place to visit. Nusa Dua has the most number of luxurious resorts in Bali, and all the resorts, not all, but most of the resorts there are 5 and 7 stars. Even when Narendra Modi came to Bali, he stayed in Nusa Dua only. If you love water activities, Nusa Dua is the place It's a to perfect be. spot. Benoa Beach करके जगह है, you can go there. There are a lot of places
on Benoa Beach offering water activities. एंड एक्टिविटीज भी बहुत सेफ है अगर आप उधर जा रहे हो. विल मेक एन एंटायर न्यू वीडियो ऑन दिस. Yes. यू कैन चेक इट आउट. Okay. And if you're a party animal, you want to party a lot, you want to go to clubs, then Seminyak and Canggu are the areas to visit. वहाँ पे डे क्लब्स भी बहुत सारे हैं, नाइट क्लब्स भी बहुत सारे हैं. So बट बाली में डे क्लब से ज्यादा चलते हैं. Day एंड हाँ, clubs, yes. बाली में मतलब 8-9 बजे से मेजोरिटी ऑफ द शॉपिंग प्लेसेस या जो सिटी प्लेसेस होती है वो सब बंद हो जाती yes. है. So 8-9 बजे जो रूरल एरियाज है उधर तो सब कुछ बंद हो जाता है. लाइक उबुद वगैरह है तो इट क्लोजेस डाउन. रेस्टोरेंट्स भी है तो रात Yes. को 10 बजे तक. सब बंद हो जाता है हाँ. मोस्टली. इफ यू वांट टू स्टे इन अ बजट प्लेस बट यू वांट एवरीथिंग कंबाइंड, कि आपको थोड़ा कल्चर भी देखना है, थोड़ा पार्टी प्लेसेस भी चाहिए एंड बजट में होटल चाहिए, देन यू कैन स्टे इन कूता. इट्स अराउंड 15-20 मिनट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट ओनली, और इधर आपको सबका मिक्स मिल जाएगा. इट्स अ सिटी तो इतना आपको एक्चुअल कल्चर देखने नहीं मिलेगा, बट यू गेट द बेस्ट ऑफ ऑल इन कूता. कमिंग टू लोकल ट्रांसपोर्टेशन, इधर उबर नहीं चलता है बट यू हैव ग्रैब एंड गोजेक. सो ग्रैब एंड गोजेक यू कैन यूज टू गेट बाइक टैक्सीज, you can use to get taxis on that, and you can also get food delivered on Grab and Gojek. It's like Zomato, Blinkit जैसा है. Of these two, Gojek is a little cheaper, so if you are trying to find a cheaper option, first try Gojek. अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो आप Grab में जाओ. इधर लोकल टैक्सी वाले भी बहुत होते हैं. हाँ, लैंग्वेज इज अ प्रॉब्लम हियर. yes. काफी लोगों को इंग्लिश नहीं आती है इधर. बट आप अपनी आइटनरी कैरी करोगे, आप उनको अपना लोकेशन दिखाओगे तो वो आपको ले जाएंगे उधर तक. लोकल टैक्सीज ज्यादातर अवॉइड करना, बिकॉज वो लोग बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं. So that's called tourist fee. हाँ, दैट्स Tourist कॉल्ड द टूरिस्ट फी. fare. बट इजियर थिंग इज कि इफ यू आर कमिंग हियर वांट टू एक्सप्लोर, आप एक बाइक रेंट कर लो इंस्टेड ऑफ ट्रैवलिंग. आप बाइक रेंट कर सकते हो, कार भी रेंट कर सकते हो अकॉर्डिंग हाँ. टू योर कन्वीनियंस, एंड पेट्रोल इज वेरी चीप, सो दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम. सो बेटर ऑप्शन इज कि आप खुद से रेंट करके फिर आप एक्सप्लोर करो. अगर आपको इंटरसिटी जाना है कहीं तो आप टैक्सी सर्विस अवेल करो. एंड टैक्सी में अगर आपको ग्रैब गोजेक नहीं यूज करना, लाइक योर फोन हैज डाइड ऑफ चार्जिंग और नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो यू कैन ट्राई ब्लूबर्ड टैक्सी. ब्लूबर्ड टैक्सी इज अ टैक्सी सर्विस विच इज वेरी कन्वीनियंट एंड एकदम प्रॉपर है उसका. हाँ. मतलब दे डोंट स्कैम यू. इट्स अ प्रॉपर एस्टैब्लिश्ड टैक्सी सर्विस, सो यू कैन ट्राई ब्लूबर्ड टैक्सीज. सो फूड हियर, इंडियन फूड हियर इज नॉट एन इशू. आपको काफी जगह पे ऑप्शन मिल जाते हैं. थोड़ा महंगा Veg- मिलेगा. हाँ, थोड़ा महंगा मिलेगा, बट आपको ढूंढना पड़ेगा. वेज नॉन वेज मिल जाता है आपको. Don't हाँ, try to don't be try to adventurous and eat eat at at local stalls. स्पेसेस जो छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं या कहीं भी आपको दुकान दिख जाए, बिकॉज इधर बहुत अनहेल्दी सर्व होता है. तो काफी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है या उनका गला खराब हो जाता है. Not the place to be adventurous with your food and try local cuisines here. हाँ, सो डोंट ट्राई लोकल क्विजीन्स हियर. कमिंग टू द बजट, लाइक आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा. तो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टे एट नॉर्मल प्लेसेस, लाइक बहुत महंगा भी नहीं बहुत सस्ता भी नहीं, एवरेज प्लेसेस, देन फ्रॉम इंडिया इट विल कॉस्ट यू अराउंड 80 to 95,000 per person. इंडिया से काफी चीप है ये. चीप रेट्स पे काफी अच्छी होटल्स मिलती है आपको. लाइक 5 स्टार होटल्स आपको अराउंड 3,000-4,000 इस रेट में मिल जाती है. हाँ, so there are a lot of resorts in Kuta too which charge around 3,000 to 5,000 per night per room, so it's very cheap here. बस आपको फ्लाइट्स में बहुत बड़ा फटका पड़ेगा. फ्लाइट्स रेंज फ्रॉम 35,000 to हाँ. 50,000 डिपेंडिंग अपॉन द सीजन. अदरवाइज एक्सप्लोरिंग द सिटी इज वेरी चीप. Very cheap, इधर yes. बहुत अच्छा है, मतलब रीजनेबल रेट्स है सब जगह पे. और अगर आपको ऐसे उबुद वगैरह में रहना है या नुसा दुआ में रहना है, इफ यू वांट टू फ्लाई सिंगापुर एंड लाइक ड्रिंक अ लॉट, ईट एट ओनली लग्स spaces, then it will cost you around 130 max 150 1,50,000 per person. बस उससे लंबा कुछ इधर नहीं होता है खर्चा. एंड आइडियली 6 nights to 8 nights is enough to explore Bali. ओके, सो अभी टाइम है बोनस टिप्स का. दिस आर छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी होती है, जो हम काफ़ी टाइम पे भूल जाते हैं. बट वी आर गोइंग टू टेल यू कि आप क्या क्या चीज़ें कैरी कर सकते हो, आप क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हो. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इंडोनेशिया बहुत गरीब देश है और इधर बाली में चोरी चकारी बहुत होती है. तो आप जब भी स्ट्रीट पे जा रहे हो तो आप अपना फ़ोन ऐसे यूज़ नहीं कर सकते आराम से. ऐसे आप वीडियो कॉल करते हुए या वीडियो हाँ, शूट वीडियो करते हुए शूट मत कर करो, रहे हैं, वरना कोई खींच के कोई ले आके जाएगा. लेके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. स्पेशली इन द विलेज एरियाज जैसे उबुद है या उनका सिटी मार्केट आप घूम रहे हो तो इवन ये सब इन बहुत कूता, होता इवन है. इन कूता. कूता में भी होता है.
हाँ, एंड इनफैक्ट आप किसी भी ऐसे वियर्ड लोकल से बात करोगे तो कभी कभी वो आपको हिप्नोटाइज करके वो तो आपके गाइड लेके स्ट्रिक्टली जाता है। टेल्स अस नॉट टू टॉक टू एनीवन कि आप मत बात करिए, इधर लोग आपको हिप्नोटाइज करके हाँ, आपके पैसे अरे वगैरह ले नहीं। जाते हैं. सो डोंट टॉक टू पीपल हु लुक अ लिटिल स्केची. डोंट ईट एनीथिंग व्हिच दे गिव. हाँ, से स्टे. सो आपकी खुद की चीज़ों का आप खुद ही ध्यान रखो. हमारा जो गाइड है वो भी यही बोलता है कि आप ना अपनी कोई भी चीज लेके जाओ, जैसे आप अपने बैग भी है तो आप बैग पीछे मत रखो, बैग आगे रख के चलो. वॉलेट्स भी आगे रखो, बैक पॉकेट में मत रखो. और अपना पासपोर्ट वगैरह आप कहीं से इधर आके आपको अपना पासपोर्ट बाहर लेके जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने होटल रूम में रख सकते हो. आप कहीं मांगते नहीं है एज सच इधर. तो इट इज सेफर टू कीप योर एक्स्ट्रा मनी, पासपोर्ट्स, एनीथिंग एल्स. Extra money, passports, return tickets, everything हाँ. which you don't need while roaming around here, keep them in your तो hotel आप locker. इधर होटल में ही रख के जाओ, बिकॉज बाहर आपका कहीं कुछ घूम गया तो आप फिर प्रॉब्लम में पड़ जाओगे. Hotels are relatively safe. So another bonus tip is, अगर आपको अच्छे से अपना फोन चलाना है, अच्छा कंटेंट शूट करना है, तो you'll need to charge your devices. And इधर सब जगह पे इंडिया वाले सॉकेट नहीं चलते हैं, so you'll need to हाँ. get a travel adapter and you'll have to carry it everywhere you go. सो हमने 3 होटल्स चेंज किए अभी तक. लास्ट 2 होटल्स में तो चल रहा था चल रहा था एक ऐसा होगा कि हाँ. कोई सॉकेट में आपका चल जाएगा, कोई में नहीं कोई में चलेगा. नहीं चलेगा. So तो आप better एक to not risk इंटरनेशनल it. अडेप्टर लेके जाओ इधर से, टू बी ऑन अ सेफर साइड. So we got this adapter. It's of Ambrain. It cost us around 800 rupees. So ये बहुत अच्छा है, बहुत convenient है. आपको सारे countries का इसमें मिल जाएगा. You can order this from Amazon. We'll And- put down the link in the description in case you want to check it out. Another must-have thing you need to carry in Bali is mosquito repellents. हाँ, यहाँ- इधर बहुत मच्छर होता है. So this is a humid Tropical area, area. tropical area. So मच्छर तो बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ पे. You need to carry mosquito repellent, else you become dinner for mosquitoes. स्ट्रीट्स वगैरह में मतलब आप जैसे लोकल शॉपिंग जा रहे हो तो आप उधर आराम से बार्गेनिंग करा सकते हो. लाइक अप टू 50% ऑफ आप बार्गेनिंग कर दोगे और वो खुश खुशी आपको दे देंगे. तो आप अगर आपको शॉपिंग करनी है, हाँ, तो आप मॉल्स में से मत करो, क्योंकि मॉल्स में से तो वो सारी चीज़ें मिलती ही है. इट्स वेरी बेसिक और उधर कोई बार्गेनिंग नहीं होती. बट आपको इधर का Obviously कुछ malls में लोकल नहीं लेना है. होती bargaining. बट इधर आपको कुछ अगर लोकल शॉपिंग करनी है तो इधर अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है. और इधर का क्या क्या फेमस है, इधर आपको क्रॉकरी अच्छी मिलती है, आपको आर्ट Wooden अच्छा crockery मिलता है. here is very famous. हाँ, Art is very famous. आर्ट इज वेरी वेरी फेमस. Bags are famous. Handbags are famous. हैंडबैग्स भी इधर अच्छे मिलते हैं, लाइक लोकल हैंडबैग्स, वो सब बहुत फेमस है. तो आप कहीं भी स्ट्रीट में जाओगे आपको सारी चीजें एक ही जगह पे मिल जाएगी. तो आप अच्छे से आप अपना शॉपिंग डे लेके आना इधर जब आओ तब, 1 डे फॉर शॉपिंग ऐसा. Again, बट उबूद मार्केट्स में थोड़ा ज्यादा महंगा Ubud मिलता Ubud है, has a tourist fee, so Ubud में सब कुछ महंगा है. महंगा मिलता है उबूद मार्केट में. बट वही चीजें सेम चीजें आपको इधर कुता मार्केट में भी मिलेगी मिलेगी, हाँ. एट अ चीपर रेट. इधर भी बार्गेनिंग होती ही है. तो इफ यू आर ट्रैवलिंग टू बोथ द एरियाज तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कुता से Purchase लो. कुता से करो. हाँ, आप कुता से लो. ओके, सो वी आर गोइंग टू मेक अनदर वीडियो, डिटेल वीडियो ऑफ बाली कि हमने क्या क्या खाया, हम किधर किधर रुके, हमारे एक्सपेंसेस क्या थे, आपको कितना डॉलर्स कैरी करना पड़ता है उधर से फॉर 2 people. तो प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो. बाय.